Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is about the dark reaction or Kelvin cycle occurring in the photosynthesis. So we have studied earlier that what is photosynthesis? Photosynthesis is a process in which green plants and some organisms such as certain bacteria, algae and marine algae uses the light energy and then convert into carbon dioxide and water to make the glucose. And all life on Earth, directly or indirectly, depends on photosynthesis as a source of food, energy, and oxygen. There are two types of organisms that are autotrophs and heterotrophs. So, what are the autotrophs? Autotrophs are basically the self feeders which can manufacture their own food, which can manufacture their own organic matter from inorganic matter. They are known as producers. They need inorganic molecules such as carbon dioxide and water and minerals to make organic molecules such as sugars, glucose molecules. And what are heterotrophs? Heterotrophs are those organisms which cannot manufacture their own food and thus depend on other organisms for their food. They depend on glucose as energy source and cannot produce it, so they obtain it by eating plants which are the primary producers or animals that have eaten plants. So autotrophs are those organisms which can manufacture their own food, while heterotrophs are those organisms that cannot manufacture their own food. There exists a food chain in the ecosystem. What is this food chain? The byproduct of photosynthesis is oxygen. So humans and other animals breathe in this oxygen, which is used in cellular respiration. And from cellular respiration, carbon dioxide is released and water is released, which is then used in the process of photosynthesis to produce these organic molecules. So this creates a food chain as shown in this figure, that in chloroplast photosynthesis occur, it releases oxygen which is utilized then in respiration, in which ATP is produced, and then it releases carbon dioxide which is again used in the photosynthesis for formation of organic molecules. So this exists a food chain in the process of photosynthesis. So moving towards the process of photosynthesis, we have discussed two reactions in the photosynthesis. Previously, we have discussed about the light reaction. Today, we'll discuss about the dark reaction. So, what are the dark reactions? They are also known as Kelvin cycle or Kelvin-Benson cycle. As they are light independent reactions, so they are known as in dark reactions. They depend on light indirectly to obtain inputs for cycle ATP and NADPH, and it takes place in chloroplast in stroma. The dark reaction involves a cycle of reactions to make the sugar molecules from carbon dioxide and energy. And the energy provided for making of sugar molecules is provided by ATP and NADPH. So अगर कैल्विन साइकिल की हम समरी को देखें तो कैल्विन साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, बल्कि इनको इनपुट चाहिए होता है लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच. और लाइट जो डार्क रिएक्शंस हैं वो भी क्लोरोप्लास्ट में ही हो रहे होते हैं, बट दे आर अकरिंग इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. और जो लाइट डार्क रिएक्शंस होते हैं इनमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. उन स्टेप्स के बाद जो है हमारे पास आता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है. स्टेप अगर हम देखें डार्क रिएक्शन के तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करता है लीव्स के थ्रू. लीव्स में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें को कहा जाता है स्टोमेटा. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करता है स्टोमेटा के थ्रू और फिर डिफ्यूज कर जाता है इंटरसेल्युलर स्पेसेस में, and then from intercellular spaces it enters the mesophyll cells of the leaves.
अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है मीजोफिल सेल्स में पहुंच जाता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाता है स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा होता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है। स्ट्रोमा वो साइट है जहाँ पे डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जो है वो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करता है थ्रू पोर्स जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, और फिर इन पोर्स से जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड देन इनटू द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। मेसोफिल सेल्स में जब पहुंचेगा तो वहां से डिफ्यूज कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जहां पे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है वो हो रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज होल्ड ऑन ताकि मैं बाकी स्टूडेंट्स को जो है ऐड कर लूं जो नहीं ऐड हो रहे। ठीक है, okay, so moving towards the steps of the Kelvin cycle। Kelvin cycle ये जो डार्क रिएक्शन या इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है उसमें बेसिकली जो है ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ होता है तीन स्टेजेस में। तीन चीजें उसके अंदर हो रही होती हैं। एक हो रही होती है फिक्सेशन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। सेकेंड वन इज रिडक्शन, ठीक है, दैट इज रिडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH, एंड थर्ड वन इज रीजनरेशन। ठीक है, तीन स्टेप्स बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, सेकेंड वन इज रिडक्शन एंड थर्ड वन इज रीजनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को देखते हैं। ठीक है, कि किस तरह से हो रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो अब स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो मौजूद होता है लेकिन इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड दो अदर कंपाउंड्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं ताकि वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को इनिशिएट कर सके। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दो और कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको कहा जाता है रुबिस्को या राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको कहा जाता है रुबिस्को या रेबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, और दूसरा जो होता है वो होता है RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दो मजीद कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। एक होगा एंजाइम रुबिस्को, ठीक है, जिसको राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज कहा जाता है, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा थ्री मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे राइबोलोज बिसफॉस्फेट या फिर RUBP के, ताकि वो इनिशिएट कर सकें जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो RUBP है इसमें जो कार्बन जो रेबुलोज बिसफॉस्फेट है ये 5 कार्बन एटम होता है। ठीक है, इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं और 2 फॉस्फेट्स होते हैं इसके साथ अटैच होते हैं। अब जो एंजाइम रुबिस्को है वो क्या करता है कि वो कैटालाइज करता है रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट। वो अटैच कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ। ठीक है, अब हर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए जो एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है उसके लिए जो है क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3PGA या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो इस डायग्राम में कि हर एक मॉलिक्यूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो क्या होगा जब रिएक्ट करेगा एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बनेगा? दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ठीक है,
ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है एज शोन इन फिगर, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और एक जो है वो फॉस्फेट है। ठीक है, अब हर टर्न में साइकिल के क्या होगा कि एक रेबुलोज बिसफॉस्फेट और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ठीक है, हर एक साइकिल में क्या होगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और एक रेबुलोज बिसफॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो कंबाइन करेंगे, जब रिएक्ट करेंगे तो वो 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो है रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया किसमें, इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम एंड विद द हेल्प ऑफ रेबुलोज बिसफॉस्फेट और RuBP। ठीक है, अब जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो ATP और NADPH जो है वो यूज करेगा सेल कन्वर्ट करने के लिए इस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि ATP और NADPH की जो एनर्जी है वो यूज होगी कन्वर्ट करने के लिए इन फॉस्फोग्लिसरेट को इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दिस वन। ठीक है, अब क्या होगा कि हर, हमने कहा था कि एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक रेबुलोज बिसफॉस्फेट बनेंगे तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। ठीक है, तो जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 रेबुलोज बिसफॉस्फेट जो है ये कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। अब जो NADP है और जो ATP और NADPH होंगे वो यूटिलाइज होंगे कन्वर्ट करने के लिए इन 6 मॉलिक्यूल्स को 3 फॉस्फोग्लिसरेट के into 6 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate। ठीक है, ये रिडक्शन रिएक्शन होगा। रिडक्शन इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो 3 PGA है 3 फॉस्फोग्लिसरेट है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, गेन करके इलेक्ट्रॉन्स को वो रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होके वो कन्वर्ट हो गया इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब जो 6 मॉलिक्यूल्स ATP के और 6 मॉलिक्यूल्स ही NADPH के यूज होंगे इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स किसके बन रहे हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो हर एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लिए एक ATP यूज होगा और एक NADPH यूज होगा। अब ATP जब यूज होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, किस तरह कि एक टर्मिनल जो फॉस्फेट है ATP में ये जो है ये लूज हो जाएगा। तो जब एक टर्मिनल फॉस्फेट लूज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ADP। ठीक है, जबकि NADPH में क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी किस तरह से कि हाइड्रोजन एटम भी रिलीज होगा। ठीक है, और एनर्जी भी रिलीज होगी और कन्वर्ट हो जाएगा NADPH इनटू NADP। ठीक है, अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ATP और NADP ये क्या होंगे कि ये नियर बाय जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं वहां पे ये रिटर्न कर जाएंगे, वहां पे चले जाएंगे दोबारा से ताकि ये रीयूज हो सके और री एनर्जाइज हो सके और दोबारा से जो है ATP बन सके और NADPH बन सके। ठीक है, ओके, सो अब क्या हुआ केल्विन साइकिल में, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुई, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है रुबिस्को उसने फिक्स किया कार्बन डाइऑक्साइड को टू RuBP के साथ। ठीक है, इस फिक्सेशन के नतीजे में क्या हुआ कि RuBP और जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन किए तो मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। हर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए जो एक जो है RuBP के साथ रिएक्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ठीक है, अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट होता है इसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, और एक फॉस्फेट होता है। ठीक है, अब हर टर्न में साइकिल के क्या होगा कि एक RuBP और एक कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल्स बना रहा होगा फॉस्फोग्लिसरेट के
तो चूंकि 3 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 3 RuBP के, तो टोटल जो है 6,3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, रिडक्शन हुई NADPH और ATP की। NADPH और ATP यूटिलाइज हुए 3-PGA को कन्वर्ट करने में इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट किस तरह से किया कि रिडक्शन रिएक्शन हुआ कि जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था it gains the electrons and it is reduced to glyceraldehyde 3 phosphate। ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल जो हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ATP और NADPH इसमें यूज होंगे, 6 ATP यूज होंगे और 6 NADPH यूज होंगे और एनर्जी जो है वो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ के ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ADP में और NADPH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप है इसका वो है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन किसकी होगी कि अब इस पॉइंट पे सिर्फ क्या करेगा कि एक जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 का मॉलिक्यूल होगा वो केल्विन साइकिल को लीव करेगा और साइटोप्लाज्म में जाएगा ताकि वो जो प्लांट को बाकी कंपाउंड्स रिक्वायर्ड है वो उनकी फॉर्मेशन कर सके, उनको प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है, और उसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, तो ये 3 टर्न्स लेगा केल्विन साइकिल के ताकि वो इनफ कार्बन को जो है वो एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, अब होगा क्या कि एक जो मॉलिक्यूल है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का वो केल्विन साइकिल को लीव करेगा। ठीक है, और कहाँ पे जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा और साइटोप्लाज्म में जाके ये क्या करेगा कि जो प्लांट को कंपाउंड्स रिक्वायर्ड है उनकी सिंथेसिस करेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इसने एक्सपोर्ट होना है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें क्योंकि ये एक्सपोर्ट होता है क्लोरोप्लास्ट से और इसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं, सो इट विल टेक 3 टर्न्स ऑफ द केल्विन साइकिल टू फिक्स एनफ नेट कार्बन टू एक्सपोर्ट 1G3P। ठीक है, लेकिन हर टर्न में होता क्या है इसका कि ये दो जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स बनाता है। ठीक है, इसलिए अगर ये 3 टर्न लेगा तो कितने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स बनाएगा, 6 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा, जिसमें से एक जो है वो कहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया, एक एक्सपोर्ट हो गया इनटू द साइटोप्लाज्म और रिमेनिंग जो है 5 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जो है वो साइकिल में रह गए और वो दोबारा से यूटिलाइज होंगे रीजनरेट करने के लिए राइबोलोज बिस फॉस्फेट को। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स थे, 6 जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट ने 6 मॉलिक्यूल किसके बनाए थे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ठीक है, लेकिन उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो चला जाएगा साइटोप्लाज्म में ताकि वो जो है प्लांट्स की जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बाकी फूड उनको रिक्वायर है उसको प्रिपेयर कर सके, तो बाकी रह जाएंगे साइकिल में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो अब ये जो 5 मॉलिक्यूल्स होंगे ये दोबारा यूटिलाइज होंगे रीजनरेट करने के लिए राइबोलोज बिस फॉस्फेट को, जो दोबारा से जो है फिक्स होगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह जो है 3 मॉलिक्यूल जो है दोबारा से ATP के यूज होंगे इस रीजनरेशन स्टेप में और इस तरह से ये जो साइकिल है केल्विन साइकिल ये जो है ये कंटिन्यू रहेगी। जिस तरह के यहाँ है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस डायग्राम में शो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन करता है किसके साथ, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ। राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है इसमें 5 जो है कार्बन एटम्स होते हैं और 2 इसके साइड्स पे फॉस्फेट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 RuBP। ठीक है, बिस्को कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम फिक्स करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP के साथ, तो क्या बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये 3 कार्बन जो है एसिड है 1 2 3 और इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप है। अब हर कार्बन डाइऑक्साइड जब एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और एक RuBP का कंबाइन करेंगे एक साइकिल में तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे इस 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। तो जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 RuBP कंबाइन करेंगे तो बनेगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो हैं ये रिड्यूस होंगे इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड होगी थ्रू एटीपी एंड एनएडीपीएच, और एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और एनएडीपीएच कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीपी में और H प्लस में। ठीक है। अब ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है। अब उनमें से जो एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को मॉलिक्यूल है वो कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में मूव करेगा, ताकि प्लांट्स जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट है फूड की, वो सेंसेस, वो प्रोडक्ट्स बना सके जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड है। अब जो है यहाँ पे जो रिमेनिंग ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो है 5। अब ये 5 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोबारा से रीजनरेट करेंगे रेबुलोज बिस फॉस्फेट को, और एनर्जी इसमें जो चाहिए होगी वो प्रोवाइड करेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, और एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एडीपी, दोबारा से जो है वो बनेगा आरयूबीपी, और ये साइकिल जो है ये इसी तरह से जो है ये जारी रहेगी, जिस तरह से यहाँ पे जो है नजर आ रहा है। ठीक है। अब ये जो रीजनरेटेड आरयूबीपी है ये दोबारा से यूज होगा साइकिल को रिस्टार्ट करने के लिए। ठीक है। और ये प्रोसेस जो है रिपीटेडली रिपीट होता रहेगा जब तक कि कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो अवेलेबल रहेंगे, कहाँ पे, स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है। और थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है इस प्रोसेस, इस साइकिल के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जो प्लांट यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। और इसके अलावा ये ग्लूकोज, ये मटेरियल जो है स्ट्रक्चर मटेरियल के तौर पे भी यूज होते हैं, और प्लांट जो है इस फूड को जो है वो स्टोर भी कर लेते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारे पास केल्विन साइकिल की केल्विन साइकिल किस तरह से हो रहा है प्लांट्स के अंदर, स्ट्रोमा में हो रहा है केल्विन साइकिल, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। बेसिकली उसमें 3 स्टेप्स हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, एनएडीपीएच की और एटीपी की रिडक्शन होती है। ठीक है। उस थर्ड स्टेप में रेबुलोज बिसफॉस्फेट की रीजनरेशन होती है। सो देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स which are occurring in the Kelvin cycle। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ताकि जो है हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। मैम जहाँ पे आपने